Good morning everybody. We're on process costing और कल जो हम बात कर रहे थे it was about subsequent process की हम accounting देख रहे थे. So in that what we discussed it was how to prepare your process 2 or process B account. In that we discussed the issue of your material A and material B वाला issue हम लोग कर रहे थे, ठीक है? And कल तक if I remember correctly we discussed problem number 19 हमने आखिरी में किया था. Then we solved number 21 and 22, right? So let's come to problem number 20. आज जो इशू हमको डिस्कस करना है ये कुछ दो चार प्रॉब्लम्स है सब्सिक्वेंट प्रोसेस वाले, ये हमको कंप्लीट करने हैं. प्लस हमें ऐसे भी प्रॉब्लम्स करने हैं जहाँ पर प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 दोनों अकाउंट्स करने हैं आपको. वहाँ पर प्रोसेस 1 का भी रहेगा, प्रोसेस 2 का भी रहेगा और दोनों एक ही प्रॉब्लम में. सो इन दैट केस यू हैव टू प्रिपेयर 2 process account, 2 statement of equivalent unit, 2 statement of element wise cost and 2 valuation reports. ठीक है, वो वाले प्रॉब्लम्स होंगे. एंड आफ्टर दैट when one process make the transfer to other process at profit, तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, and then this chapter will be over. Okay, so let's come to problem number 20. This is November 2005 का प्रॉब्लम है for 10 marks. Let's see what is given to you. From the following information for the month ending October 2005, prepare process cost account for process 3. Use first in first out FIFO method. FIFO method to value equivalent production. Direct materials added in process 3. Opening WIP 2000 units at rupees 25,750. Transfer from process 2 53,000 units at rupees 4,11,500. Transfer to process 4 48,000 units. Closing stock of process 3 5,000 units. Unit scrap 2,000 units. Then direct material added in process 3 1,97,600. Direct wages 97,600 and production overheads. Then degree of completion. Opening stock, closing stock and scrap. Material 80%, 70%, 100%. Labor 60%, 50%, 70%. Overhead 60%, 50%, 70%. The normal loss in the process was 5% of production. 5% of production. Production का मतलब क्या लिया जाता है यहाँ पर हमेशा? It is opening plus introduce less closing. जो आएगा of that 5%. अच्छा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 5% की तो वो कितना आएगा? My opening is 2000, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 से आया 53,000, हो गया 55 और क्लोजिंग में है 5,000. सो ओपनिंग का 2 प्लस 53 हो गया 55 माइनस 5 बचा कितना? 50,000. सो 50,000 का 5% विल कम टू 2,500 और एक्चुअल स्क्रैप कितना है? 2,000. सो देयर इज एब्नॉर्मल गेन ऑफ 500 units and scrap was sold at rupees 3 per unit. Okay, so we'll go for this. अभी देखिए जो हमने नंबर 19 किया था बिल्कुल सेम तरीके से ये भी है, बट स्टिल आई वांट टू गो फॉर दिस प्रॉब्लम क्योंकि प्रोसेस में मुझको कोई चांस लेना नहीं है. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस प्रॉब्लम फॉर होमवर्क विल जस्ट डू द प्रैक्टिस हियर. ठीक है, बस आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें आप. सो सबसे पहले क्या बनेगा इसमें आपका? क्वांटिटी अकाउंट. Just try to improve your speed. Now you please try to improve your speed. ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं. Just improve your speed. Your quantity account, very first balance brought down 2,000. Then process 2 से आया 53,000 by normal loss. As I said, 2,000 plus 53,000 minus 5,000, इसका 5%.
2500 और क्योंकि मेरा एक्चुअल लॉस सिर्फ 2000 है, इसका मतलब देयर इज abnormal gain of 500. Then by process 4, transfer to process 4 is 48,000 units and balance carried down is closing stock of process 3 is 5,000 units. या प्लीज चेक क्वांटिटी अकाउंट टैली का आप देख लीजिए एक बार. Is it 55,500 both side? Yes. 55,500. Now very first prepare statement of equivalent units. Statement of equivalent units. Material 1, material 2, labor and overheads. Now please try to solve on your own. Actual plus virtual दोनों, ठीक है. जरूरत पड़ी तो ही बोर्ड पर देखो, ठीक है. I will solve in detail, but you please try on your own. Yeah, number 1 it is transfer to process 4 in that A opening WIP जो कि 2000 units है and इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दी हुई है. इट इज ओपनिंग स्टॉक मटेरियल वाइज 80% complete, but as far as material 1 is concerned it is 100% complete. ओनली मटेरियल 2 के लिए वो 80% है एंड लेबर ओवरहेड ये 60%. सो 2000 का 100% इज 2000, 80% इज 1600 एंड 60% इज 1200. देन इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट. तो 48,000 जो हमारे कंप्लीट हुए उसमें ओपनिंग के अनडाउटेडली 2000, सो 48 minus 2 is from introduced and completed are 46,000. Yeah, and this is to be taken as 100% with respect to all elements. 46,000, 46,000 and 46,000. So this is 2 plus 46 is, in this way this is what? 48,000. The number 2 is normal loss जो कि 2,500 units. डिग्री ऑफ कंप्लीशन एंड क्वांटिटी nil. बोलिए. ओपनिंग ओहो 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 मेरी मिस्टेक हो गई. वेरी गुड. बच्चों ने ध्यान नहीं दिया तो सर गलत कर गए. इट वॉज एक मिनट. मटेरियल 1 जो है मैंने तो जो नहीं करना वो करके रखा, बच्चों वाली मिस्टेक मैंने करा दी. तो हियर यस 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 ये तो हो गया है, ये नहीं आएगा, ये भी 0 हो जाएगा. ये 80 हो चुका है, 20 लेना है. देखो इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक. ठीक है, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है ना.
और एग्जाम में इसी तरह से हम लोग पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और ये गलती करके भी प्रोसेस अकाउंट टैली होगा भला, फाइनली टैली होगा, और हम बोलेंगे पूरे 10 मार्क आएंगे, बाद में पता चलता है एक अटेम्प्ट और लग गया। ठीक है, सो प्लीज ओके अवॉइड सिली मिस्टेक, या इट वाज माय मिस्टेक। आगे चलिए, द नेक्स्ट नंबर 3, abnormal gain. Abnormal gain, it is 500 units, and this is 100% complete, but this is what your negative figure in this statement, 500. Number 4, closing WIP, which is 5000 units. So what is the degree of completion with respect to material 1? It is 100%. हालांकि क्लोजिंग में मटेरियल जो है मटेरियल 2 की डिग्री है 70%, 3500, एंड लेबर ओवरहेड इज 50%, 2500। अब इसमें स्क्रैप की जो डिग्री दी है वो तो जो एक्चुअल में 2000 यूनिट स्क्रैप हो गए वो उसकी डिग्री है, लेकिन वो स्क्रैप तो अदरवाइज मैंने नॉर्मल लॉस ही कंसिडर किया था, इसलिए उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, so this is what comes to I think 55,000, then 50 कितना था ये 50,500, then this is 49,400, and the last one is 48,800. Then अगला बनेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट वाइज कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट वाइज कॉस्ट। मटेरियल 1, मटेरियल 2, labor and overheads. So, यहाँ पर हमें क्या लेना है? सबसे पहले ओपनिंग कॉस्ट आती है क्या? नहीं, ओनली कॉस्ट इनकर्ड। सो कॉस्ट इनकर्ड में जो मटेरियल 1 है, मतलब जो प्रोसेस 2 से जो आपको आया 53,000 एट रुपीज 4,11,500, वो लिया जाएगा 4,11,500। मटेरियल 2 मतलब दिस टाइम इंट्रोड्यूस 1,97,600। मटेरियल प्रोसेस 3 में जो इंट्रोड्यूस किया गया लेबर इज 97,600, एंड ओवरहेड में इट इज 48,800। आई थिंक इट इज गिवन 4800। या यू प्लीज टेक दैट फिगर 48,800 ओवरहेड्स। प्लीज आप प्रॉब्लम में करेक्शन करके ले, देयर इज सम वन प्रिंटिंग मिस्टेक है, 4,800 इज गिवन, 8 इज मिसिंग, प्लीज टेक इट 48,800। देन लेस नॉर्मल लॉस जो कि हमारा 2,500 यूनिट्स एट रुपीज 3, 7,500। Therefore, net cost it's 4,04,197,600, 97,600 and 48,800. Then number 4, number of equivalent units,
number of equivalent units. Material 1 wise 50,500, material 2 wise 49,400, labor overhead 48,800. Therefore, net cost per unit, I think this comes to 8, Bella. This comes to 4, right? 2, 4. This is 2, this is 1. 1, 2, 4, 8. Is it 15? Okay. So total में आ गया आपका 15. प्रोसेस अकाउंट टैली हो गया, वेरी गुड. कितना है टोटल? 7,88,750. ओके, यस, ये स्पीड होना चाहिए. नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन. नंबर 1, ट्रांसफर टू प्रोसेस 4. ट्रांसफर टू प्रोसेस 4, इट विल बी, सबसे पहले जो जाएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP. तो ओपनिंग WIP की जो कॉस्ट है उसमें मटेरियल 1, 2, लेबर, ओवरहेड सब मिलाकर है 25,750. वो एज इट इज जाएगा आगे 25,750. नंबर 2, कॉस्ट इनकर्ड ऑन ओपनिंग WIP. ओपनिंग WIP पर जो कॉस्ट हमने इनकर की विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड्स. तो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 1 तो कुछ आना ही नहीं है. मटेरियल 2 के लिए 400 यूनिट्स एट रुपीज 4 ईच, दैट कम्स टू 1600. लेबर के लिए 800 यूनिट्स एट रुपीज 2, that is again 1600, and overheads 800 into 1, 800. So this is what 4,000. 4,000. And number 3, units introduced and completed. तो इसी बार इंट्रोड्यूस और कंप्लीट हो गया, दैट इज दिस 46,000. So this 46,000 multiplied by total 15. This comes to 6,90,000. Is it? So this comes to total 7,19,750. बराबर है क्या? 7,19,750. Then इसमें नंबर 2, your valuation of abnormal gain. एबनॉर्मल गेन में सीधा सीधा 500 यूनिट्स हैं. सो दीज 500 यूनिट्स इंटू रुपीज 15, so that is 7,500. Then number 3, closing WIP. In that closing WIP उसमें आपका मटेरियल 1 लगा है, मटेरियल 2 है, लेबर भी है और ओवरहेड्स भी है. सो मटेरियल 1 में एज फार एज मटेरियल 1 इज कंसर्न 5,000 यूनिट्स एट रुपीज 8, सो दैट इज 40,000. मटेरियल 2 के लिए देयर आर 3,500 यूनिट्स, इक्विवेलेंट 3,500 एट रुपीज 4. So that is 14,000. Labor and overhead it is 2,500 into 2 into 1, 5,000 and 2,500. So this is 54, 50, 61,500. Is it? Okay. And then फाइनली बनेगा हमारा प्रोसेस अकाउंट.
process 3 accounts. So it's process 2 balance brought down. ओपनिंग में थे हमारे पास 2000 यूनिट्स जिसका वैल्यूएशन था 25,750. Then we received from process 2. So 2 process 2 account 53 ना 53,000 और उसका वैल्यूएशन कितना है वो कितना था हमारा 53 का इट वॉज दिया था आपको 411,500 4,11,500. देन 2 मटेरियल जो कि हमने इनकर किया 197,600. देन 2 वेजेस 97,600 and 2 overheads 48,800. 48,800. Then credit may buy normal loss. By normal loss it is 2,500 and that normal loss it was कितना था मेरा 7,500. Then by process 4 account we transferred कितने total 48,000 units. The valuation is 719,750 and by balance carried down we have कितने 4,000 units ना नहीं 5,000 उसका valuation है 61,500. So quantity total comes to abnormal gain रह गया यहाँ पर abnormal gain 500 and that valuation is 7,500. चेक करो टैली हो जाएगा. Just quantity total is 50,500 and amount 788,750. सचिन जरा जूम करके दिखा देना 788,750. Is it? Yes. Any doubt? Any query? हाँ बोलो ना बोलो ना. Very good. So देखिए जो चीज़ें इनिशियली डिफिकल्ट लगती ना वो अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं that problem automatically becomes simple. So for costing accounts please keep on practicing. Yeah, please come to number 23rd. Point number 23rd.